Yeah, thank you very much. And once again, good evening, everybody. Good evening. So, yeah, let's go to the topic what we were discussing yesterday. Yesterday, it was expected that we should cover the chapter. So, I think so. It's a bit blur, na? Are you getting a blur picture? नहीं. No, sir. ठीक है. Okay. Because on laptop, I'm just observing it's a bit blur if I move. But, yesterday it was expected to cover the chapter, but I think so. Last topic is remaining. That is nothing but the relation between degree of dissociation and Van 't factor I. So let's move to what is Van 't factor I. जो ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया Van 't factor I. थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और उसके साथ हम लोग रिलेशन डिस्कस करते हैं. कल शायद आपको रिकॉल होता होगा. We have discussed Van 't factor I. So Van 't factor, which is noted by I. Small I, it is noted by Van 't factor. Van 't is the scientist who made analogy, who compared gaseous laws with the solutions. Solution has solvent and solid particles. The behavior of solid particles is like a gaseous particles, and that's why, according to Van 't factor, gaseous laws can be applicable to the solutions. And in applying the laws, we have the Van 't Boyle's law, Van 't Charles law, Van 't Gay-Lussac's law, Van 't Avogadro's law, and combining all these laws, we got a solution equation, ideal solution equation, and we have seen that pi v is equal to nRT yesterday. So we have seen the pi v is equal to nRT, that is for the osmotic pressure. But at the same time, substances are of two types. There are substances called as electrolytes, and there are substances called as non-electrolytes. Electrolyte substances has the tendency either to dissolve or as well as to dissociate into the solution, whereas non-electrolyte do not dissociate into the aqueous solution. This is a very major difference between these two. या फिर हम scientifically define भी कर सकते हैं. Electrolytes are the substances whose water solution can conduct electricity. So electrolytes are the substances whose water solution can conduct electricity, and non-electrolytes are the substances whose water solution do not conduct electricity. What is the reason behind that? जो हमने कल देखा कि electrolytes are the substances in which particle dissociate and produces cations and anions. And with the help of these cations and anions, electric current can be carried, and that's why these substances are called as electrolytes. और इसलिए उन्हें electrolytes कहा जाता है. तो ये हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. Then हमने ये देखा कि when we make a solution, then which substance we are using? Either we are using electrolytes, either we are using non-electrolyte. That matters a lot. So electrolyte may get dissociated or may get associated. कल हमने example देखा. Sodium chloride is the salt which has the tendency to dissociate. Sodium chloride produces Na plus and Cl minus ions, whereas acetic acid like substance has a tendency to associate. तो अगर एसिटिक एसिड के हम लोग दो मॉलिक्यूल पुट करते हैं तो वो जॉइंट होके एक मॉलिक्यूल मिलता है, बिकॉज वो एसोसिएट होने की टेंडेंसी है. सोडियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल पुट करते हैं तो वो दो मॉलिक्यूल तैयार करता है, दो कैटायंस तैयार करता है, दो आयंस तैयार करता है, एक कैटायन और कैटायन, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस. सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली दो पार्टिकल मिलते हैं. और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल्स. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कुछ लेना देना नहीं है, वहां पे Na प्लस है, Cl माइनस है, बस वहां पे दो पार्टिकल प्रेजेंट है. That is sufficient for the qualitative property, because qualitative property is the property which depends upon number of solid particles. That doesn't depend upon nature of solid particle. This is very fundamental definition we have seen at the starting of the second half of this chapter. Qualitative properties are the properties which depends upon number of solid particles and doesn't depend upon nature of solid particles. Now the thing is that we have seen four of the qualitative properties, and in these four of the properties we have already considered solution as a best. But once or when we want to make a solution, at that time there are two choices. While we are adding a solute can be of two types. That may be of electrolyte, that may be of non-electrolyte. Sugar is non-electrolyte, salt is electrolyte. तो अगर शुगर पुट करेंगे, हम शुगर का एक मोल पुट करेंगे पानी के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो एक मोल ही मिलेगा. बट इलेक्ट्रोलाइट का पुट करेंगे, एक से ज्यादा पार्टिकल मिल सकते हैं या कम हो सकता है. सो दैट इज ड्यू टू डिसोसिएशन और ड्यू टू एसोसिएशन. एंड दैट्स व्हाई हमने जो एक्चुअली सॉल्यूशंस के लिए पार्टिकल पुट किए, जो मोल्स पुट किए, वो और प्रैक्टिकली सॉल्यूशन के अंदर मिलने वाले मोल्स, इसमें फर्क होता है. एंड दैट्स व्हाई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी या तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा या तो एक्सपेक्टेड से कम मिलता है. Qualitative property is directly proportional to number of particles which actually present into the solution, and these number of particles depends upon dissociation or association.
and that's why when to factor has to be considered. तो हमने ये देखा when to factor के अंदर when to factor is equal to, you can say, observe colligative property upon theoretical colligative property. अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. यहाँ पे आप theoretical देखेंगे तो ऐसा भी डेफिनेशन मिलता है, when to factor is equal to practical, मतलब actual number of particles observed in the solution upon theoretically number of particles put into the solution, like that. ऐसा भी हो सकता है. So अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. So we can have like this one. So when to factor is this one. तो जैसे मैंने आपको बताया, कल एग्जांपल दिया मैंने कि सपोज हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सबसे पहला एग्जांपल हमने इनिशियल का लिया था. इनिशियल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस Na प्लस Cl माइनस. ओके, अभी इसके अंदर हमने ये देखा कि एक्चुअली हमने पुट किया 1 मोल ऑफ NaCl, बट यहाँ पे मिलता है इसका 1 मोल मिलता है, इसका मोल मिलता है. तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मोल 1 है और प्रोडक्ट साइड में मोल 1 + 1 2 होते हैं. तो हमने प्रैक्टिकली पुट किया था 1 मोल, बट theoretically पुट किया था 1 मोल, प्रैक्टिकली वी हैव ऑब्जर्व्ड 2 मोल्स. सो इसका when to factor क्या आएगा? I is equal to ऑब्जर्व colligative property, मतलब ऑब्जर्व पार्टिकल्स आर 2 अपॉन theoretical particle is 1. सो ये इसका when to factor है. वही हम एसिटिक एसिड की बात करते हैं, तो एसिटिक एसिड का केस में था CH3COOH, लाइक दिस इज द एसिटिक एसिड फार्मूला. इसके अगर हम 2 पार्टिकल लेते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में, इट इंडिकेट्स 2 molecules of acetic acid are present. When they are put into the solution, we get here CH3COOH here twice. अब यहाँ पे 2 इस तरफ लिखा है. आपने शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने पॉलीमर डिस्कस किया है. So this 2 is to the right hand side, that indicates that these 2 particles are attached with each other. So when these 2 particles attaches, at that time 1 molecule is observed. तो 2 molecule attach होके 1 molecule मिल जाता है. So this is called as association, and this phenomenon is called as dissociation. तो इस केस में क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली हमने 2 पार्टिकल पुट किए थे, theoretically प्रैक्टिकली मिलता 1 molecule. So इसका when to factor क्या आएगा? I is equal to observed particle कितने हैं? 1. theoretically हमने पुट किए थे कितने हैं? 2. ये इसका when to factor है. तो here due to association, here theoretical particles मतलब हमने पुट किए थे 2, बट एक्चुअली ऑब्जर्व पार्टिकल कितने हैं? 1. सो देयर इज एसोसिएशन. तो यहाँ पे पार्टिकल कम हुआ है तो colligative प्रॉपर्टी कम आएगा, बट डिक्रीज्ड आएगा, क्योंकि colligative प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो इसका colligative प्रॉपर्टी कम आएगा. यहाँ पे हमने पार्टिकल पुट किया था 1, एक्चुअली मिले वहां पे 2, तो पार्टिकल बढ़े हैं तो colligative प्रॉपर्टी बढ़ेगा, colligative प्रॉपर्टी बढ़ेगा. इन केस ऑफ शुगर के केस में, जैसे मैंने कल बताया, C6H12O6, ये अगर पुट करेंगे तो वही मिलता है आपको C6H12O6. शुगर अभी मैंने छोटा लिखा है, शायद आप पढ़ नहीं पाएंगे इसके अंदर, लेकिन शुगर का फॉर्मूला जानते हो, C6H12O6. शुगर नाइदर डिसोसिएट्स नॉर एसोसिएट. हमने उसका 1 पार्टिकल पुट किया, हम लोगों को 1 ही मिला. तो इसका when to factor क्या होगा? प्रैक्टिकली ऑब्जर्व पार्टिकल 1, theoretically we have put 1, so it is equal to 1. तो ये this is the importance of when to factor, because theoretically हमने कितने पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर पुट किए सॉल्यूट के, और प्रैक्टिकली वहां पे कितने मिल रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमने जो सॉल्यूट लिया है क्या वो सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है या वो सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट which is neither dissociate nor associate, and these are the substances, they may dissociate or may associate. So this is the difference, and that's why theoretically whatever the particle we have put, we can observe more than that or less than that, or maybe similar particles. So this is what happens, and that's why हम जब solutions बनाते हैं तो कौन सा solute यूज कर रहे हैं उसके ऊपर भी quality property डिपेंड करेगा. That's why when to factor, ये डिफरेंस वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, और when to factor के आधार पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा either how to resolve or how to resolve this problem, कि quality property कभी-कभी ज्यादा आता है, कभी-कभी कम आता है, और किस कारण से आता है. तो because of this reasons particles may dissociate, particle may associate, or particle may remain the same, and that's why all qualitative properties what we have discussed, उसके अंदर when to factor ऐड करना पड़ता है, when to factor ऐड करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, सो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, दैट इज नथिंग द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P था. ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ का डेल्टा P अपॉन P10 इज इक्वल टू X2, और X2 का वैल्यू क्या है हम अच्छी तरह जानते हैं. X2 इज नथिंग बट A2 अपॉन N1, एंड दैट्स व्हाई इट इज W2 अपॉन M2 into M1 अपॉन W1, ऐसा है, ये आ जाता है. अभी इसके अंदर क्या करना पड़ता है हम लोगों को? when to factor ऐड करना पड़ता है, दैट इज I ऐड करना पड़ता है.
तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आई लगाना पड़ता है, यहाँ पे इसके अंदर कर सकते हैं। तो यार डेल्टा पी अपॉन P1 naught is equal to I x2. This I has to be added. This I has to be added. I is nothing but the Van 2 factor. So Van 2 factor अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो it will come 1. Sorry, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 आएगा. अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है तो either it will be dissociated मतलब more than 1 or it will be associated less than 1. So वो यहाँ पे रखेंगे तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी राइट आएगा. मतलब हमने थियोरेटिकली क्या पुट किया है उसके बेहतर है कि प्रैक्टिकली उसके अंदर क्या पार्टिकल्स उसके हिसाब से आएगा. That's why this I has to be added here in this one. इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा जो इधर भी आएगा. तो ये फॉर्मूला अगर फाइनल लिखना चाहते हैं हम लोग तो ये ऐसे आएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू आपके पुरानी ई बुक के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक मिलता है. अगर आप लोग पुराना ई बुक यूज कर रहे हो, ऑनलाइन बुक यूज कर रहे हो तो उसके अंदर छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है. दिस फैक्टर इज नॉट बीन कंसिडर्ड बीइंग लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर. सो आप याद रखिएगा कि इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा. डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट इस तरफ भेज देंगे हम लोग तो क्या आएगा फिर I into x2 के बदले ये आएगा that is you can say W2 M1 upon M2 into W1 into P1 not इस तरफ आएगा तो P1 not upon 1. This is the phenomenon. ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखा हुआ था, डिराइव किया था लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर के अंदर. ये फॉर्मूला पहले से क्या था, इसके अंदर सिर्फ Van 2 फैक्टर I ऐड किया. I क्यों ऐड किया? बिकॉज हम नहीं जानते हमारा सोल्यूट क्या है. हमारा सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, हमारा सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है. अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वैसे भी I का वैल्यू 1 आने वाला है, तो इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द वैल्यू. तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो उतना ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा. बट अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन के केस में ये रहेगा और ऑक्सीजन के केस में ये रहेगा, दैट विल बी कंपेंसेटेड विद R एंड दैट्स व्हाई दिस Van 2 फैक्टर हैज टू बी एडेड इन दिस फार्मूला. और सारे फार्मूले के अंदर ऐड करना है, सारे फार्मूले के अंदर. तो हम जितने फार्मूला यूज करते हैं सब के अंदर आएगा. फिर उसके अंदर आता है कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी. इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है हम जितना जानते हैं केबीएम. ओके, केबीएम आता है लाइक दिस वन. और डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उधर क्या आएगा केएफएम. अभी यहाँ पर भी आई ऐड करना पड़ेगा लाइक दिस वन. इसके अंदर भी आई ऐड होगा. पहले आई नहीं था, Van 2 फैक्टर नहीं था, यहाँ पे उसके अंदर Van 2 फैक्टर है आई. सो दैट आई हैज टू बी एडेड, दैट Van 2 फैक्टर हैज टू बी एडेड. ये फार्मूला इस तरीके आएगा. और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला था पाई बी इज इक्वल टू एम आर टी या फिर सी आर टी या तो एम आर टी. मतलब पाई इज इक्वल टू सी आर टी या तो एम आर टी. मैं वापस बता रहा हूँ आपको, कुछ बुक के अंदर आपको सी आर टी मिलेगा जो पुरानी बुक है, जो नया बुक है उसके अंदर एम मिलेगा. एम इज द मोलैरिटी एंड सी इज द कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका मोलैरिटी हो सकता है, बट मोलैरिटी इज वेरी स्पेसिफिक टर्म और कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी जनरल टर्म. कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, कॉन्सेंट्रेशन मोलैलिटी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, परसेंटेज बाय वेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है. सो कई किसी भी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, बट मोलैरिटी इज मोलैरिटी. इट इज वेरी स्पेसिफिक N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DN2. सो कुछ बुक के अंदर ऐसा मिलेगा, कुछ बुक के अंदर ऐसा मिलेगा. जैसा भी हो कोई टेंशन नहीं, उसके अंदर हमें ये Van 2 फैक्टर उसके अंदर ऐड करना है. सो दिस इज व्हाट वी आर. सो all colligative properties got modified because of this Van 2 factor. क्योंकि Van 2 factor consider electrolytes and non-electrolyte. Either there is a dissociation, either there is an association. This factor has been considered by Van 2, and that's why there won't be any mistake while calculating the colligative property. तो हम जो colligative property calculate करेंगे वो perfect ही आएगा. Either there is dissociation, either there is association. Because actual number of particle कितने हैं वो Van 2 factor के साथ हमें पता चलेगा, and we can have the right values for the colligative properties. Clear with this? So this is the importance of colligative property, that is you can say Van 2 factor. Clear? Now Van 2 factor के अंदर और बारीकी से विचार करेंगे, सोचेंगे तो एक प्रॉब्लम आता है. Van 2 factor क्यों लाना पड़ा? तो उसका रीजन है substances electrolyte होते हैं, substances non-electrolytes होते हैं. Electrolyte has a tendency to dissociate or associate. Non-electrolyte do not dissociate or associate. Now thing is that हम जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं इसके अंदर डिसोसिएशन होता है, पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं. और ये इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं. These electrolytes are two types, strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolyte dissociates completely. हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर डिस्कस किया था. दिस केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने डिस्कस किया था strong electrolyte dissociate completely whereas weak electrolyte dissociate partially. Weak electrolyte dissociate partially. Now the thing is that जब पार्शियल डिसोसिएशन होगा या पार्शियल एसोसिएशन होगा तो उस केस में वैल्यू अलग होगा.
और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो उस केस में वैल्यू अलग होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि HCl, H2SO4 दे डिसोशिएट कंप्लीटली। सो हमने 1 मोल पुट किया, 1 मोल पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हमने अगर वीक एसिड यूज किया, एसिडिक एसिड, तो उसका डिसोसिएशन वीक है, बहुत कम है, पार्शियल। उसी के अंदर हमने अभी HCl हाइड्रोजन साइनाइड नाम का एसिड यूज किया, तो उसका भी डिसोसिएशन वीक है, लेकिन अलग है ना। तो किसी का डिसोसिएशन मानो 0.1 है, तो किसी का डिसोसिएशन 0.01 होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हर एक सब्सटेंस का डिसोसिएशन अलग अलग है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग है। और ये जो डिसोसिएशन है दैट इज मेजर्ड इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका मतलब सिर्फ जनरली ऐसा कंसिडर करके नहीं चलेगा, सब्सटेंस डिसोसिएट होते हैं इसलिए वैन टू फैक्टर लेके आइएगा, क्योंकि हर सब्सटेंस का डिसोसिएशन अलग है और वो डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में मेजर किया जाता है। और अगर उस फैक्टर को हम कंसिडर नहीं करेंगे तो शायद वापस प्रॉपर वैल्यू की तरफ नहीं जाएंगे। दैट्स व्हाई we have to study the relation between degree of dissociation and this Van 2 factor. Van 2 factor परफेक्टली निकालना है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखना पड़ेगा। हर सब्सटेंस का डिसोसिएशन अलग अलग होता है, डिसोसिएट होते हैं लेकिन अलग अलग क्वांटिटी होती है, डिसोसिएशन अलग अलग होते हैं, दैट इज मेजर्ड इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वो रिलेशन के बिना हम वैन टू फैक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, न्याय नहीं दे पाएंगे या फिर राइटली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई we have to have that last topic of concluding topic of this chapter, that is you can say relation between Van 2 factor I and degree of dissociation. So let's move to the last factor. ठीक है, so we have to discuss a relation between alpha degree of dissociation and Van 2 factor I. Okay, so we have to discuss the relation between degree of dissociation alpha and Van 2 factor I. So what is the relation between Van 2 factor I and degree of dissociation? That is what we have to discuss here in this topic. ठीक है, now चलो कंसीडर करते हैं, एक सॉल्ट कंसीडर करते हैं हम लोग। कंसीडर अ सॉल्ट दैट इज AXBY। AXBY नाम का सॉल्ट है दैट डिसोशिएट, जैसे कि AM प्लस प्लस BN माइनस, ऐसा। ठीक है, अभी सवाल है A के X मोल्स मिलेंगे क्योंकि A के X है और B के Y मोल्स मिलेंगे, ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। ये किस तरीके से है, सी PbSO4, ये दूसरा एग्जांपल देता हूं, Al2SO4 ऐसे सॉल्ट होता है। तो अभी देखिए ना, इसके अंदर ये 2 जो है एल्यूमिनियम के लिए है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस Al3+ ऐसा है। ओके, और यहाँ पे SO4 एक्चुअली थ्राइस होगा। ओके, थ्राइस होगा, तो इन दैट सेंस यहाँ पे आएगा प्लस थ्राइस SO4 माइनस माइनस, ऐसा आएगा। Now this is the particular example. Aluminum sulfate का particular example है, and this is you can say generalized example. तो ये जो राइट साइड में फिगर्स होते हैं वो उसके नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं कि कैटायंस के कितने मोल्स हैं, एनायंस के कितने मोल्स हैं, and that's why ये इस तरीके से जनरल एग्जांपल हमने लिया। ठीक है ना, अब देखिए ना, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड का केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, जिसके अंदर हमने देखा था ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास वीक एसिड है, वीक बेस है, तो वो किस तरीके से डिसोशिएट होता है। मतलब ये हम लोग वीक के लिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, मतलब दे डिसोशिएट कंप्लीटली। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये जो अल्फा है उसका फार्मूला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये फॉर्मूला है। देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। अल्फा क्या है, जितने सारे इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होते हैं, चाहे वो वीक एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, कोई भी सॉल्ट हो, उनका डिसोसिएशन होता है। कितना डिसोसिएशन हुआ वो मेजर करने के लिए अल्फा आता है, और ये अल्फा का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। I mean, take example of HCl. HCl is a strong electrolyte that dissociate completely.
तो अगर मैं HCl लेता हूँ कि HCl डिसोशिएट कंप्लीटली H प्लस प्लस Cl माइनस, H प्लस प्लस Cl माइनस। अभी इस केस में देखिएगा आप लोग, इसका एक मोल लिया, पूरा का पूरा मोल डिसोशिएट होता है, यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा नहीं, पूरा डिसोशिएट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड, इसका अगर अल्फा निकालना है तो इसका अल्फा क्या आएगा, देखिए इस एसिड का अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट, 1 लिया 1 डिसोशिएट हुआ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन 1। तो किसी भी, ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, every strong electrolyte has alpha is equal to 1. The reason behind that has the complete dissociation. But the strong electrolyte dissociate completely. This is very theoretical statement, but it's very conceptual. Strong electrolyte, it is strong acid, it may be strong base, or it may be strong salt. They dissociate completely. तो हमने लिया 1 मोल है, dissociate 1 मोल हो चुका है complete. तो alpha is equal to 1. यही number of mole dissociate after total number of moles taken. This is nothing but alpha. Alpha क्या है? To measure the degree of dissociation. कौन सा सब्सटेंस कितना डिसोशिएट हो चुका है, ये मेजर करने के लिए हम अल्फा यूज करते हैं। अल्फा का ये फॉर्मूला है, ये वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्लियर? सो वी हैव सीन दैट। अभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो 1 है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें वो कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, वो कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला था जो दिया था वहां। ठीक है, अभी देखिए, तो इनिशियल मोल्स, दिस इज द सॉल्ट जो हम इनिशियली लेंगे, और इस सॉल्ट का हम लोग लेंगे 1 मोल। इसके मोल 0 होंगे क्योंकि ये बाद में बनने वाले, ये प्रोडक्ट्स है, ये हमारे प्रोडक्ट्स है। मतलब दिस इज क्या, दिस आर कैटायंस एंड दिस आर एनायंस। ये M मतलब उसके ऊपर चार्ज है, जैसे कि सोडियम के ऊपर +1 होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है। तो ये जो M है वो 1 2 3 4 उसके वैल्यूज है। यहाँ पे N है, जैसे कि क्लोरीन के ऊपर -1 है, सल्फर के ऊपर -2 है, इस तरीके से वो होता है। सो इन दैट सेंस, तो being this is the salt, yeah, this is the electrolyte whose 1 mole is taken initially, and इनके मोल 0 होंगे क्योंकि वो बाद में डिसोशिएट होकर तैयार होने वाले हैं बाद में। अभी हमने इसका 1 मोल पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मतलब डिसोशिएट हुआ, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अभी ये जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता तो पूरा डिसोशिएट होता था, उसका कोई सवाल नहीं, बट इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हां, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ इसका हमने 1 मोल लिया है, तो 1 मोल में से अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसके अल्फा मोल चले जाएंगे। जैसे हमारे पास 100 रुपया है, हम मार्केट में जाके 20 रुपया खर्च करके आते हैं, तो हमारे पास बचे पैसे कितने होंगे? 100 माइनस 20, उतना होगा। हमारे पास 100 रुपये थे, हमने 20 खर्च कर दिए, तो हमारे पास बचेंगे कितने? 100 माइनस 20। तो उसी तरीके से हमारे, हमने मोल्स कितने लिए? 1, हमने लिया 1 मोल, उसमें से इसका जाएगा कितना? अल्फा, क्योंकि अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो है वो सब्सटेंस का है। तो इसके बचेंगे कितने मोल्स? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा मोल्स बचेंगे। इसके कितने मोल बनेंगे? जितने इसके जाएंगे उतने इसके बनेंगे, दैट इज अल्फा। लेकिन इसके 1 मोल के साथ इसके x मोल बनते हैं, तो इसके अल्फा के साथ इसके बनेंगे x अल्फा, इसके बनेंगे y अल्फा। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे x अल्फा क्यों लिखा हमने? इसके 1 मोल के लिए इसके अल्फा मोल जाते हैं, और इसके जो है x अल्फा मोल बनते हैं। सो इन दैट सेंस, क्योंकि x इज द नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स प्रेजेंटेड हियर, सो इन दैट सेंस इसके 1 माइनस अल्फा जाएंगे तो इसके x अल्फा तैयार होंगे, और इसके y अल्फा तैयार हो जाएंगे। सो अभी मोल्स एट इक्विलिब्रियम बात करते हैं, तो इसके जो मोल्स बाकी है वो है 1 माइनस अल्फा, इसके मोल जो है वो x अल्फा है, और इसके जो मोल है वो y अल्फा है। ठीक है, दिस इज द सिनेरियो। अभी हम कंसंट्रेशन में निकाल सकते हैं, उसके अभी हम एज ऑफ नाउ जरूरत नहीं है। तो अभी देखिए ना कि वेंटू फैक्टर क्या है हमारा। वेंटू फैक्टर क्या है? वेंटू फैक्टर I is equal to observed moles, practically observed mole into the solution upon theoretical moles. Theoretical moles. Okay. So I is equal to observed moles, मतलब ये टोटल आएंगे ना जो हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व किए, और theoretical moles आएंगे। So अभी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके किसके है? सॉल्यूशन में ये भी वहां पे प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, और ये भी प्रेजेंट है। द रीजन बिहाइंड दैट, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हुआ है। तो हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर AXBY भी रहेगा, XA भी रहेगा, और B भी रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कि ये कैसा ना कि मानो हमने 1 कप ऑफ वाटर के अंदर हमने शुगर डिसॉल्व कर दिया, और मानो हमने थोड़ा सा ज्यादा शुगर डिसॉल्व कर दिया, तो शुगर विल रिमेन इन अनडिसॉल्व फॉर्म। शुगर कैसे रहेगा? अनडिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। तो अनडिसॉल्व फॉर्म में शुगर रहेगा तो वो दिखाई देगा आपको कि वहां पे है शुगर। तो कुछ शुगर पानी में ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है जो हमें नहीं दिखाई देता है, और कुछ शुगर जो अनडिसॉल्व फॉर्म में वो हमें दिखाई देता है। उसी तरीके से यहाँ पे
ये एक्स dy ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दैट्स व्हाई एक्स dy ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा। अल्फा बहुत छोटा होता है एक्चुअली, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत छोटा होता है। हमारे पास 1 मोल है तो अल्फा का वैल्यू 0.1 0.2 ऐसा होता है, बहुत कम होता है। तो 100 में से 1 रुपया 2 रुपया लाइक दैट, इस टाइप का होता है। सो इन दैट सेंस यू कैन से इसकी बहुत ज्यादा मात्रा रहेगी, इसकी थोड़ी मात्रा रहेगी और इसकी थोड़ी मात्रा बनेगी। सो हर एक की क्वांटिटी प्रेजेंट होगी। तो टोटल मोल्स मतलब इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स प्लस इसके मोल रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स will be here 1 minus alpha plus x alpha plus y alpha, ये रहेंगे। ठीक है, like this one. Now इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते थोड़ा तो 1 plus alpha into x plus y minus 1. अब देखिए ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको। अब देखिएगा ये सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। देखो ये सॉल्व करें, अल्फा से करते हैं तो अल्फा x प्लस अल्फा y है ना, या फिर x अल्फा प्लस y अल्फा माइनस अल्फा, मतलब यही मिलेगा आपको वापस। तो इस इक्वेशन से ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, तो ये हम लोग मिलते हैं। दीस आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी वैन टू फैक्टर क्या है? ऑब्जर्व मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन थ्योरेटिकली। सो I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स कौन से है? तो ये है। सो दैट इज 1 प्लस अल्फा इन ब्रैकेट x प्लस y माइनस 1 अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन हमने 1 लिया था। इनिशियल कितना मोल लिया था हमने? सिर्फ 1 मोल लिया था। ये हम लोग को उसके अंदर मिल जाएगा। नाउ ये जो x प्लस y है इसके लिए हम लोग n मानते हैं। x n इज इक्वल टू x प्लस y, क्योंकि x क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ A, y क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ B। सो x प्लस y इज नथिंग बट n, x प्लस y इज इक्वल टू n। तो n हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो फाइनली हमें मिलेगा I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इन ब्रैकेट n minus 1 upon 1. Got it? So everyone got it? What is this n? N is nothing but the x plus y. और x indicate the particles of A, y indicates the particle of B. तो हम लोग को ये मिल जाता है। अभी ये 1 इस तरफ भेज देता हूं मैं। ये 1 अगर इस तरफ भेज दूंगा तो I minus 1 हो जाएगा। I minus 1 is equal to alpha into n dash minus 1 upon 1. वो नहीं लिखा तो भी चलता है, 1 ही है ना। अभी ये इस तरफ भेज देंगे तो डिवाइड बाय होगा। तो इसका मतलब होगा अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 upon n dash minus 1. This is the relation. This is the relation between alpha and Van 't Hoff factor I. So hope everyone got it. This alpha is nothing but the degree of dissociation for weak electrolyte, and this alpha is equal to I minus 1 upon n dash minus 1. What is this I? I is a Van 't Hoff factor. और Van 't Hoff factor क्या होता है? Observed colligative property upon theoretical colligative property. And what is n? N is a total particles of A and B substance. That is x plus y. So that is what we can say, x plus y. तो किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर हमें अगर x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कुल मिला के दैट इज x plus y is n minus 1 I is a Van 't Hoff factor पुट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है तो हम लोग I निकाल सकते हैं, दैट इज Van 't Hoff factor निकाल सकते हैं। This is the relation and that will be useful to calculate the Van 't Hoff factor and calculate, you can say, degree of dissociation. This is the relation. Once again, Van 't Hoff factor क्यों लाना पड़ा उसके बारे में बताया। Reason behind that, there are substances which are electrolyte, there are substances which are non-electrolyte. Electrolyte substances either dissociate or either associate, whereas non-electrolyte substances are the substances which neither dissociates nor associate, and that's why we can get a colligative property higher than expected or lower than expected, or in such a case we need to have a proper factor, and that's why Van 't Hoff is introduced a Van 't Hoff factor collision I. I is observed colligative property upon theoretical colligative property. That is what we have seen. Or Van 't Hoff factor is applicable to all the colligative properties. It may be electrolyte, it may be non-electrolyte, because that will give a true value of colligative property. But electrolytes are of two types: strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolyte dissociate completely. तो उनका जो अल्फा है, that is degree of dissociation, वो तो 1 ही होगा. But in case of weak electrolyte, that is different. Degree of dissociation is different. Alpha is different. That value has to be calculated. That value has to be considered. That value has to be considered. और वो यहाँ पे आएगा. So जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल लेते हैं कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में मानो आपके मार्क्स थोड़े से कम ज्यादा होते हैं, एक का दूसरा परसेंटेज इधर उधर हो जाता है, तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा शायद। बट अगर जेई नीट के अंदर, जेई नीट नाम के एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपका एक भी मार्क कम ज्यादा होता है तो आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 1000 से ऊपर नीचे हो सकता है। एंड एक मार्क के कारण आपका नेशनल लेवल का आईआईटी का सीट भी जा सकता है, या फिर एमबीबीएस का सीट भी जा सकता है, जस्ट एक मार्क्स के कारण। या फिर पॉइंट का डिफरेंस भी होता है उसके अंदर, जब दोनों का टाइप हो जाएगा पॉइंट का भी डिफरेंस होता है, तब भी दैट विल मैटर, दैट मैटर्स अ लॉट।
तो जितना बारीकी से वहां पे जेई नीट के अंदर आपके मेरिट मैटर करता है, उसी तरीके से ये डिग्री ऑफ डिसीजन अल्फा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसीजन अल्फा जो कुछ भी होगा, चाहे वो 0.001 भी क्यों ना हो, 0.1 क्यों ना हो, that matters and that has to be considered. And this is nothing but the relation between degree of dissociation for weak electrolytes and Van to factor I. Clear with this? And this is, you can say, end of the chapter. This is the end of the chapter. Solution and colligative property यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा. So a bit delayed chapter है. Delayed मतलब बीच में हमारे 2-3 lectures properly held नहीं हुआ है. And that's why chapter थोड़ा delay हो गया. अभी अगर मुझे लगता है कि आपको अगर कुछ किसी टॉपिक के अंदर डाउट है तो वी कैन हैव द डाउट डिफिकल्टीज रिलेटेड विद दिस चैप्टर. अगर नहीं है तो वी हैव टू प्रोसीड फॉर द न्यूमेरिकल्स. ठीक है ना? सो आई वुड लाइक टू आस्क टू everyone amongst you, is there any difficulty doubt with this chapter? Is there any topic you want more clarification, more exploration for that topic in order to get it well? Or if not, then we'll proceed for the numericals. Or if yes, I will clear your doubts. So please, is there anyone having the doubt regarding the solution and colligative property, any of the topic, any of the concept? Yes, please. Okay. That means there isn't any doubt yet. That means you got it. Either you need a time to read it. है ना? दोनों में से हो सकता है. Now we have to proceed for the numericals. We have to proceed for the numericals. और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि आपको दो चीजें बहुत मैटर करेगी. वैसे देखते तो हमारे पास सिर्फ 4 ही मेन फॉर्मूले आते हैं. 4 ही मेन फॉर्मूले आते हैं. पहला फॉर्मूला आता है दैट इज यू कैन से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दूसरा फॉर्मूला आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तीसरा आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. और फोर्थ आता है यू कैन से ऑस्मोटिक प्रेशर. बस ये 4 आ जाते हैं. और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन वो 4 मेन फॉर्मूले 4 आते हैं. उसके अंदर छोटे-छोटे है दैट इज यू कैन से रॉल्स लॉ वगैरह आ जाते हैं. कुल मिला के 6-7 फॉर्मूले वो हो जाते हैं. लेकिन इस चैप्टर के अंदर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कौन से फॉर्मूले हैं, ये 4 तो आपके लर्न हो जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं. जो अभी मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिखे थे. बट इसके अलावा हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है वो है वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्संट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्संट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो उसके अंदर हमने देखा था दैट इज परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शंस, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, formality and ppm. These are the formulas which actually are not listed in your 12 standard book. Once again I repeat it, these are the formulas ways to express the concentration of solutions are not listed here in this chapter actually, but we have discussed it in 11th standard, some basic concepts in chemistry. तो तुम में से जिनके ये फॉर्मूले नहीं है प्रिपेयर्ड, जिनके लर्न नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, I will ask them, I will suggest them to refer some basic concepts in chemistry right from 11th standard. जिसके अंदर ये फॉर्मूले मिलेंगे. अगर वो फॉर्मूले आपके परफेक्ट है तभी जाके आप इसके अंदर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके साथ लॉग टेबल का होना जरूरी है. लॉग टेबल का होना जरूरी है. दूसरी चीज है आपके पास फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है. देखिए अभी आप घर में बैठे हो सकता है आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर, कैलसी, मोबाइल वगैरह यूज करें, बट इट इज नॉट बेनिफिशियल टू यू बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है. तो अगर हमें ऐसे गलत गंदी आदत लग जाती है कैलकुलेटर यूज करने की तो शायद बोर्ड में आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे बिकॉज लॉक टेबल हैज टू बी अंडरस्टूड. लॉक टेबल आना चाहिए. तो में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको लॉक टेबल में डिफिकल्टी होती होगी. मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप में से किसी को लॉक टेबल में डिफिकल्टी है तो प्लीज फील फ्री टू लेट अस नो, राइट अस. अकॉर्डिंगली वी विल हैव द लेक्चर रिगार्डिंग योर लॉक टेबल्स. लॉक टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, फिर लॉक टेबल्स कैसे देखने हैं, स्क्वायर रूट कैसे देखने हैं वगैरह वगैरह सब लॉक टेबल का है. फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए वो दोनों जरूरी है. अगर वो हम नहीं करते हैं तो थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम होगा हमारे लिए. वी वोंट बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ठीक है ना? अदरवाइज न्यूमेरिकल्स बिकम्स इजी. तो अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एवरीवन अमंगस्ट अस विल प्रिपेयर ऑल द फॉर्मूलाज. ऑलरेडी मैंने बताया था कल आपको कि फॉर्मूला प्रिपेयर करके आना है ताकि हम लोग न्यूमेरिकल शुरुआत कर पाए. सो हाउ मेनी अमंगस्ट यू आर प्रिपेयर्ड विद अस ऑल द फॉर्मूलाज? प्लीज लेट मी नो. हाउ मेनी अमंगस्ट यू आर रेडी और हैव प्रिपेयर्ड विद ऑल द फॉर्मूलाज? सबसे पहले जो आते हैं वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्संट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, और उसके बाद आते हैं ये 4 मेन फॉर्मूला मतलब 4 क्वालिटी प्रॉपर्टी के साथ, और उनके और 3-4 सब फॉर्मूला देख सकते हैं. 7-8-10 फॉर्मूले वो, और पहले वाले वो 6-7 फॉर्मूले आ जाते हैं. सो ऑलमोस्ट 15 to 17 फॉर्मूला आ जाते हैं. और कुछ बेसिक्स भी आ जाते हैं जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स की वगैरह बात करते हैं हम लोग. तो कुल मिला के 20 के आसपास फॉर्मूला आ जाएंगे.
So how many amongst you are prepared with this 20 formulas? Is there anyone? सारे तो होंगे नहीं, मैं समझ सकता हूँ, but कुछ तो होंगे जिसने ये सारे फॉर्मूले किए हैं. Is there anyone? I would like to listen from your side. No one. Okay, ठीक है. शायद मैंने लिख के दिए थे सिखाते समय. Am I right? ये अच्छी बात है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाइक दैट. आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस टू यू और यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. इज देयर एनी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाइक द मोमेंट यू आर रनिंग? यस. It's kind of, है ना? Do you need that I should write all the formulas here again? I should give all the formulas written here. No No, response. Okay, thank you for your response. Who responded, please? Sahil. Yes, thank you, Said. बाकी लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है. ठीक है, कोई बात नहीं. वैसे भी हमारा ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने को आ चुका है. कल मैं एक्सपेक्ट करूंगा, कल हमें न्यूमेरिकल करने ही करने हैं, किसी भी हालत में करना है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऑलमोस्ट ये 15 to 20 फॉर्मूला एवरीवन अमंगस्ट अस विल राइट इट, और आई विल आस्क इट कि यार आपने फॉर्मूले किए हैं कि नहीं किए हैं, और अकॉर्डिंगली विल गो विद द न्यूमेरिकल. सो एवरीवन शुड बी रेडी विद योर पेन, विद योर नोटबुक एंड विद योर लॉग टेबल, ताकि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए. क्लियर विद दिस? So everyone, thank you very much, and see you tomorrow with all the things ready for your numericals. Thank you very much. See you tomorrow then. Thank you, sir. Thank you. Bye bye.